Let's go. ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ତଥା ନଗର ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ପୁନର୍ଗଠନ ତଥା ନୂତନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟଟି ଯେ ଖାଲି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଯାହା ମୁଁ କହିବି ସେୟା ଯେକୌଣସି ଏକ ପିଲା ଯଦି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସହାୟକ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ବିଷୟକୁ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ସମୟରେ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ସିଏ? ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କେଉଁଟା? ନା ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନାଧୀନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ? ନା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ନା ସେ ରାଜା ଭାରତର ଲୋକ ବା ଭାରତର ଲୋକ ଜଣେ ରାଜା ହେଇଥିବେ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦ ଯେଉଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିୟମ ପାରିତ ହୋଇ ଏଥିରେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ 1947ରେ, ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିୟମ 1948 ଅନୁସାରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ତମେ ଜାଣିଥିବ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବେଟନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଭାରତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତିନୋଟି ପସନ୍ଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବେଟନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଏ ତିନିଟା କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଚାହିଁବେ ଭାରତରେ ମିଶିପାରିବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶିପାରିବେ ଅଥବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ। ତ ଏ ତିନୋଟି ଅପସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାହାକୁ? ନା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବକୁ। ବୁଝିହେଲା? ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ସମୟରେ ଆମ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ 552ଟି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯାହାର ଶାସକ ରାଜା ଥିଲେ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ ଆମେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ କହିବା ବୋଲି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଏବେ କଥା ହେଲେ। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି 552 ମଧ୍ୟରୁ 549ଟି ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଗଲେ। ହେଲେ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ବା ମିଶିଲେ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ। ତ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ତିନୋଟି ହେଉଛି କିଏ କିଏ? ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଜୁନାଗଡ଼, କାଶ୍ମୀର। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଅପରେସନ୍ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ମିଶା ଯାଇଥିଲା। ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସି ମିଶିଲା। ତ ଜୁନାଗଡ଼ ସେହିପରି ଗଣମତ ସଂଗ୍ରହ ବା ବାଇ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍। ତ ବାଇ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଜୁନାଗଡ଼ର ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ତ ସେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାରାହାରି କଥାରେ ଅଛି ଯେ 800 କୁକୁର ସେ ପାଳିଥିଲେ। ତ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରି, ଆମେ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଏବେ। ତ ଏଇ ଜୁନାଗଡ଼ର ରାଜା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ସେଠି ରାଜା ଥିଲେ ମୁସଲିମ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ। ତ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ତ ସେଠି ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ କରାଗଲା ବା ଭୋଟିଂ କରାଗଲା। ସେ ଭୋଟିଂରେ 95.5% ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଲା ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ବାଇ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ବା ଗଣମତ ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଜୁନାଗଡ଼ ଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ହେଲା। ତାପରେ କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ଥିଲେ ହରି ସିଂ। ତ କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ହରି ସିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସେସନରେ ସାଇନ୍ କରି ଭାରତରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ। ସମୟକ୍ରମରେ 1950 ମସିହାରେ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମୟରେ ଭାରତରେ ଥିବା 29 ଗୋଟି ରାଜ୍ୟକୁ କ, ଖ, ଗ, ଘ এই ଚାରୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେ ବି ରାଜ୍ୟ ଆମର ଅଛି ଏ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରାଗଲା। କରେ କିଏ ରହିବେ, ଖରେ କିଏ ରହିବେ, ଗରେ କିଏ ରହିବେ ଏବଂ ଘରେ କିଏ ରହିବେ। ତ ଏଇ କଥା ଆମର ମେନସନ୍ ଥିଲା କେଉଁଠି? ନା ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବା ପରିଶିଷ୍ଟର ସୂଚୀ ତାଲିକାରେ ଏହାକୁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
करे किए रहिबे ना स्वाधीनता पूर्व ब्रिटिश शासनाधीन जिते भी राज्य थे आम पढ़ी दुई प्रकार राज्य थे गोटे हूँ प्रिंसली स्टेट आ गोटे हूँ ब्रिटिश प्रोविंस तो ब्रिटिश प्रोविंस राज्य गुड़ी को यही क श्रेणी में रखा जाइथिला। तो ये राज्य गुड़ी कौन कौन थिला आसाम बिहार बॉम्बे मध्य प्रदेश माड्रास ओडिशा पंजाब संयुक्त प्रदेश बा यूनाइटेड प्रोविंस पश्चिम बंग। तो ये संयुक्त प्रदेश बा यूनाइटेड प्रोविंस जोटा अच्छी तो मैंने डाउट हो कहीदे टी से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड किसी अंचल को से यूनाइटेड प्रोविंस बोली कहुला। यार मुख्य किए रोते ना राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जड़े राज्यपाल एक क श्रेणी राज्य मानकर मुख्य थे। तापर ख श्रेणी किए आसिले ना प्रिंसली स्टेट जैसे भी देशीय राजा रही जमीक हैदराबाद जम्मू काश्मीर मध्य भारत मैसूर अंचल माने आजिकार जो कर्णाटक तेलंगाना एमती किसी अंचल को लेकिन मैसूर अंचल जो मैसूर राजस्थान सौराष्ट्र ट्राभनकोर कोचिन विंध्य प्रदेश पटियाला एवं पूर्वांचल यार शासन मुख्य कौन कहगला राज्य प्रमुख बा शासन मुख्य। तो ग श्रेणी किए रे जो चीफ कमिशनर प्रोविंस जहाँ जहाँ थिला चीफ कमिशनर मैंने जो शासन करुले एवं किसी देशीय राज्य आसिले कौ श्रेणी ना ग श्रेणी में आसिले। तो ये ग श्रेणी थी राज्य गुड़िक किए किए हेले आजमेर भोपाल बिलासपुर कूचबिहार कुर्ग दिल्ली हिमाचल प्रदेश कच्छ मणिपुर त्रिपुरा। ओके तो आंकर किए थिले ना चीफ कमिशनर बा उपराज्यपाल बा लेफ्टिनेंट गवर्नर माने यार होथिले मुख्य। तापर आसिला घ श्रेणी रे आमर यूनियन टेरिटरी जो अच्छी अंडमान निकोबर द्वीपपुंज तो ये हूँ घ श्रेणी रे राज्य हिसाब से आर शासन मुख्य होती चीफ कमिशनर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पाई था। वर्तमान देखिबा भाषा भित्तिक राज्य गठन। तो मनर प्रश्न आसे जे कौन पाई भारत रे भाषा भित्तिक राज्य गठन निमंते दाबी आसीथिला ना दाबी आसबार कारण अनेक रही से मुख्य कारण होउछि जे गोटे अंचल रे जो गोटे राज्य रे विभिन्न भाषाभाषी लोक माने रही जाइथिले। आम आगू को देखा कौ राज्य रे केते प्रकार भाषाभाषी लोक माने मिसिक रही जाइथिले। तो प्रत्येक भाषाभाषी अंचल लोक माने चाहूथिले जे नूतन भाव एक राज्य गठन हो एवं से राज्यटी निजर भाषा भित्तिरे हेई थाउ। मनकर मु तेलुगु कहूँ तो तेलुगु कहूथुवा लोक मानू ने एक राज्य गठन करा जाऊ से राज्य थिबा लोक माने समस्त तेलुगु रे कथबार्ता होथिबे बा ओडिया कहूथुवा लोक मानू ने गोटे राज्य गठन करा जाऊ जो से राज्य लोक माने सब ओडिया कहूथिबे। ये एक प्रकार निजर भाषा को सुरक्षा देवा एवं निजर सांस्कृतिक भाषा को नहीं जो संस्कृति गढ़ी उठी थाए तो से संस्कृति को मध्य विकास करने से माने मत पोषण करुथिले एवं दाबी करुथिले। किंतु प्रकृत पक्षर कौन होतिला ना सही समय रे 1946 मसीह 1949 मसीहा मध्य नूतन संविधान प्रणयन कार्य चलुथिला। एही समय रे भाषाभित्तिक राज्य बा प्रदेश गठन लगी दाबी करा जाउथिला। तो जातीय संहतिर सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यदक्षता को विचार को नहीं संविधान प्रणयन सभा भाषाभित्तिक राज्य बा प्रदेश गठनर दाबी यथार्थ नुहे बोली मत पोषण करथिले। तो संविधान प्रणयन सभार कहवा कथा थिला जदि समस्ते भाषाभित्तिक राज्य गठन करेंगे ताहले भाषा को नहीं हिंसा सृष्टि होवार संभावना अच्छी। जेमिति कि मनकर ओडिया कहूथुवा लोक बेंगली कहूथुवा लोक मान मध्य मत पार्थक्य देखा मनांतर मतांतर देखा विद्रोह देखा बा ओडिया कहूथुवा लोक हिंदी कहूथुवा लोक सहित भेदभाव रहिबो से भाया साउथ रे तमिल कहूथुवा लोक तेलुगु कहूथुवा लोक हिंदी भाषाभाषी लोक सहित भेदभाव रहिबो देखा। तो ये सब कथा यदि आसब आम भीतर जो भाईचारा रहा कथा से भाईचारार विलोप घटो और जहाँफल आमर जो नेशन बिल्डिंग जो एम अच्छी जे आम भिन्नता मध्य एकता रहा कथा से एकता कोठी ना कोठी कमी जबार संभावना रही है। तो यह दृष्टि रखी संविधान प्रणेता माने निजर सेमानकर मत देइथिले जे भाषा भितर राज्य गठन होबा एक सठिक विकल्प नुहे। तो किसी घटना को अनुध्यान कले जना पड़े जे मुख्यतः भारतर दक्षिणांचल ए संपर्कित दाबी थिला स्वतंत्र। माड्रास हैदराबाद और मैसूर अंचलर तेलुगु भाषाभाषी लोक माने निज पई एक स्वतंत्र राज्य बा प्रदेश दाबी करथिले। माड्रास रे किछि अंचल हैदराबाद मैसूर किछि अंचल तेलुगु भाषाभाषी लोक थिले। देख केतरा राज्य भितर तेलुगु कहउथुवा लोक रहउथिले।
तो से तेलुगु लोक मैंने चाहूले जे मद्रास हैदराबाद मैसूर जो राज्य मानक जो तेलुगु कहूवा लोक मैंने अच्छा लोक मान अलग कर दि जाए गोटे तेलुगु स्पीकिंग स्टेट गठन करा जाओ। तो लोक मान दाबी थिला स्वतंत्र। तो सहीपरि भाव में मैसूर कन्नड़ भाषाभाषी भित्तिर राज्य दाबी करथिले। मराठी भाषाभाषी लोक मान दाबी थिला स्वतंत्र महाराष्ट्र गठन दाबी रही। तो मालायालम और तमिल भाषाभाषी लोक माने निज पाई स्वतंत्र राज्य बा प्रदेश गठन पाई दाबी रखिथिले। तुम देखिल कन्नड़ लोक जो लोक मैंने कन्नड़ कहते से चाहूले कर्णाटक गठन हो बोली कि मराठी जो मैंने कहते हैं महाराष्ट्र गठन पर दाबी करुले। मालायालम केरल लांगुएज तुम जानी। तो तमिल भाषाभाषी लोक मैंने एक स्वतंत्र राज्य तमिल जो मैंने कहते एक स्वतंत्र राज्य गठन करने विभिन्न भाषाभाषी लोक मैंने विभिन्न राज्य गठन पर दाबी करथिले। ओके। तो विभिन्न भाषाभाषी लोकों दाबी को विचार को नहीं 1948 मसीह भाषाभित्तिक प्रदेश आयोग गठन करा जाइथिला। ये जो लोक मैंने दाबी करते से दाबी गुड़िक युक्तियुक्त कि नुहे तो ताकू विचार करने गोटे कमिटी बा आयोग गठन करा जाइथिला। तो जून 1948 रे भारत सरकार भाषाभित्तिक राज्य गठनर आवश्यकता को अनुध्यान करने निमंते एक आयोग गठन करथिले। से आयोगर ना थिला कौन एसके धर। ये एसके धर जड़े जज थे। यह आयोग 1948 डिसेम्बर रे निजर लिखित बरणी प्रदान करथिला। जून 1948 रे ये आयोग गठन करागला एसके धर आयोग। ए एसके धर आयोग निजर रिपोर्ट बा लिखित बरणी 1948 मसीहा डिसेम्बर मास प्रदान करथिले एवं प्रस्ताव रखिथिले प्रशासनिक कार्यर सुविधा निमंते राज्य पुनर्गठन करा जाई पारे। एत बड़ राज्य जो हूँ शासन करने असुविधा होता छोट छोट राज्य परिणत कले हे तो शासन आउ टे सुविधा हो पार लोक मान पाखे जा सरकार पहुँची पारे। किंतु भाषाभित्तिक राज्य गठन दाबी को आग्रह करथिले। किंतु लोक माने कौन चाहूले जे आमर भाषा भितर राज्य हो बोलिकी। यही प्रस्ताव पर लोक मान मध्य असंतोष आउरी देखागला। फलस्वरूप 1948 डिसेम्बर रे आउ एक आयोग गठन करने को सरकार बाध्य हेले। यही भाषाभित्तिक आयोग रे 3 जन सदस्य थे। प्रथम सदस्य किए थे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू, द्वितीय रे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तृतीय रे पट्टाभी सीतारामैया। तो आपको मध्य सर्ट फॉर्म रे जेवीपी कमिटी बोली कहा जाए। तो ये जेवीपी कमिटी कौन है ना यही आयोग एप्रिल 1949 मसीह निजर लिखित विवरण प्रदान कले। ये आयोग मध्य कौन करथिला ना भाषाभित्तिक राज्य गठन सपक्ष में मत पोषण करनथिले। एमान मध्य चाहे विचार कले जे भाषा भित्तिरे राज्य गठन हेबा एक ठीक कथा नुहे। आम देखिले सरकार दीटा कमिटी है। एसके धर आयोग भी मना कले एवं जेवीपी आयोग जो होता से आयोग मध्य मना कले जे कि भाषा भित्तिरे राज्य गठन करा जाई परिबो नाही। तो ये एक उत्तेजनामूलक परिस्थिति भितर 1952 मसीह स्वतंत्र तेलुगु राज्य दाबी करी अनशन करुवा पोट्टी श्रीराम मृत्यु घटना समस्या को अधिक गुरुतर कर देथिला। तो ये तेलुगु कहूथवा लोक माने जेतबे चाहिए जे एक स्वतंत्र तेलुगु प्रदेश गठन हवा दरकार, तेलुगु कहूथवा लोक मानक ने एक नूतन राज्य गठन हवा दरकार बोली कि सेही समय एई मानकर नेतृत्व नौथिले पोट्टी श्रीरामुलु। तो ये पोट्टी श्रीरामुलु से लोक तेलुगु कहूथवा लोक मानक ने एक स्वतंत्र राज्य तैयारी करिबारे जने धुरीन व्यक्ति थिले। तो सही समय से आमरण अनशन कले एवं आमरण अनशन करने द्वारा 52 डेज रे तांकर डेथ हो गला, से मरीगले। तो ये जो कथाटी लोक मानकू आहुरी उत्त्यक्त करिबारे साहाय्य कला। तो जहाँ फल लीडर जो मरीगले सी आहरी उत्त्यक्त हो उठिले। फलस्वरूप 1953 मसीह सरकार निष्पत्ति अनुसार मद्रास ठारू तेलुगु भाषाभाषी लोक मानकू पृथक करी नूतन आंध्र प्रदेश गठन करागला। 1953 मसीह जो लोक मैंने तेलुगु कहते बा तेलुगु लोक मैंने जो दाबी करते नूतन राज्य एक नूतन राज्य गठन है जहाँ ना हूँ आंध्र प्रदेश। ओके। तो तेलुगु भाषाभाषी लोकों को अनुसरण करी अन्य अंचल समान दाबी उपस्थापित है। तो से माने कहले जदि तेलुगु लोक मानू को नहीं आंध्र प्रदेश तैयारी करा जाई पारुछि, कन्नड़ लोक को नहीं कहीं कर्णाटक हो पारिबो नाही, मालायालम लोक को नहीं कहीं केरल हो पारिबो नाही। तो यहीपरि विभिन्न प्रकार दाबी आउरी बढ़िबाकू लागिला। नूतन राज्य बा प्रदेश गठन दाबीर समाधान उद्देश्य 1953 मसीह राज्य पुनर्गठन आयोग गठित होइथिला। हैला। यही आयोग रे 3 जन सदस्य थिले।
पुणी एक आयोग गठन करागला। प्रथम थिला एसके धर, तापर आसला जेवीपी कमिटी, तापर आसिले फजल अली आयोग। तो एथिरे थिले प्रथम मेंबर थिले न्यायमूर्ति फजल अली आयोग बा जस्टिस फजल अली, विशिष्ट ऐतिहासिक सरदार के एम पानिकर एवं हृदयनाथ कुंजरू। एथिरे मध्य 3 जण मेंबर थिले, किए फजल अली, के एम पानिकर, हृदयनाथ कुंजरू। तो यही उक्त आयोगर नाम थिला फजल अली आयोग, कारण एथिरे चेयरमैन थिले फजल अली। यही आयोग 1955 सेप्टेम्बर रे निजर लिखित विवरणी प्रदान करिथिला। ओके, एवं भाषाभित्तिक राज्य गठन सपक्ष रे मत प्रदान करथिले। से दीटा जो कमिटी थिले आगे, जो एसके धर एवं जेवीपी कमिटी, से माने मना कर देथिले जे भाषाभित्तिक राज्य हेई परिबो नाही, किंतु ये मत पोषण करथिले ना भाषाभित्तिक राज्य हेई परिबो। किंतु एक भाषा एक राज्यर सिद्धांत को आग्रह कर देथिले जे गोटे राज्य रे केवल गोटे प्रकार भाषा कहउथवा लोक जे रही परिबे, से ठीक कथा नुह। भाषा भितर राज्य हेई परिबो, किंतु सेही राज्य रे गोटे भाषा कहउथवा लोकन को नेकी से गोटे राज्य हेई परिबो नाही बोली कहिले। आउ कोन कहिले ना भाषाभित्तिक राज्य पुनर्गठन समय रे केतोटी कथा को से विचार को नेबा पई मध्ये परामर्श देथिले। किए ना फजल अली आयोग। तो प्रथम परामर्श कौन थिला, जातीय ऐक्य और संहतिर सुरक्षा। तमे जो भाषा को नहीं जो राज्य तैयारी करूछ, सेथिरे भारतर इंटीग्रिटी उपरे जिमती प्रश्नवाची न आसे। तो आम अखंड भारत रहिबा दरकार एवं आम भीतर ऐक्यता रहिबा दरकार, भातृभाव रहिबा दरकार। भाषागत एवं सांस्कृतिक समन्वय रहिथिबा दरकार। आर्थिक अर्थनीति एवं प्रशासनिक विचार रहिबा दरकार। प्रत्येक राज्य एवं देशर लोकंक कल्याण पाई योजना एवं प्रोत्साहन जोगै देवा दरकार सरकार। तो यही पॉइंट मानकू विचार को नेकी भाषा भित्तिरे राज्य गठन करिया पाई फजल अली आयोग परामर्श देइथिले। तत्सहित आउ कहिथिले जे संख्यालघु भाषाभाषी लोकमानकर स्वार्थ को दृष्टि रखी राज्य पुनर्गठन रूपरेख निर्धारण करने को मध्य परामर्श दिया जाइथिला। तो संख्यालघु भाषाभाषी कौन, मनकर आम ओडिशा रे मैक्सिमम लोक माने ओडिया कहउछंती। जदि सेठार थिबा लोक माने आम ओडिशार जो लोक माने अछंती हिंदी भी किछि किए कहउछंती, किए इंग्लिश रे कथावार्ता करथिबे, किंतु मैक्सिमम लोक माने कोथरे कथा कहउछंती, ओडिया रे कथा कहउछंती। तो ओडिया हबो मेजॉरिटी, आउ जो भाषा कम ओडिया ठार आउ जो भाषा सब रहिले से माने हेबे माइनॉरिटी। तो ताको संख्यालघु बोली कहा जायथा, जार संख्या कम। तो राज्य पुनर्गठन आयोगर सुपारिश को भित्ति करी पूर्व तैयारी करा जाइथिबा जो क श्रेणी राज्य, ख श्रेणी राज्य, ग श्रेणी राज्य एवं घ श्रेणी राज्यर व्यवस्था को संविधान सप्तम संशोधन, संविधान जो 7th अमेंडमेंट है सप्तम संशोधन आईन जरिया रे उच्छेद करागला। आ क ख ग घ राज्य होइक रहिबे नाही। सब राज्य कौन करागला ना पड़ोसी राज्य मान सीमा को क्या मिसई देकी क्या भांगी देकी नुआ राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल सबू सृष्टि करागला। फलस्वरूप 1956 मसीहा नवेम्बर 1 सुधा 14टी राज्य एवं 6टी केन्द्र शासित अंचल सृष्टि होइथिला। 1956 मसीहा सुधा केतरा राज्य हो गला ना 14टा राज्य। तो से 14टा राज्य कौन कौन ना आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एवं काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंग। तो ये 14टी राज्य सृष्टि होइथिला एवं ता सहित सृष्टि होइथिला ए 6 गोटी केन्द्र शासित अंचल। किए किए ना अंडमान निकोबर द्वीपपुंज, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लाक्षाद्वीप, मिनिकय, आमिनद्वीप द्वीपपुंज, मणिपुर, त्रिपुरा। ये होउछंती 6 गोटी केन्द्र शासित अंचल सृष्टि होइथिला सेतेबेले। संविधान धारा आउ 3 आउ कोन कहला ना कोनोसी राज्यर नाम मध्य परिवर्तन करि परिबो। हला मनकर आम ओडिशा ना को काली सकाळ काटी उत्कल करिवो कि आउ कोन करि परिबो, त आम ना को मध्य से परिवर्तन करि परिबो। तमे रिसेंट जानिथिबो आम ओडिसा रे स्पेलिंग आम लिखथिले ओडिशा ORRISA, तो एबे लिखछन ओडिशा, ये ना को मध्य से परिवर्तन करिछि संसद हमर। ओके, तो आम समरी करी जानिबा आर्टिकल 2 कोन कहला ना भारतर संविधान रे व्यवस्था उल्लिखित होई रहिछि जे भारतर संसद चाहिले एक नूतन राज्य को प्रतिष्ठा करि परिबो एवं एक नूतन राज्य को आनिकि भारत रे मध्य मिसई परिबो। संविधान धारा 3 कौन कहला ना भारत भीतर थिबा जे कोनोसी राज्यर किछि अंचल को से कौन करि परिबो ना आनिकि काटिकि आनिकि एक नूतन राज्य गठन करि परिबो किंबा जे कोनोसी एक राज्यर बाउंड्री परिसीमा को वृद्धि ह्रास करि परिबो एवं ता सहित आ कोन करि परिबो ना जे कोनोसी एक राज्यर नाम को मध्य परिवर्तन करि परिबो। एही नियम प्रणयन करिबा पूर्वरु राष्ट्रपतिंकर अनुमति लोड़ा जाइथाय।
तो जितेबाला संसद चाहिए मनकर ओडिशार ना को परिवर्तन करने सी आगे राष्ट्रपति अनुमति आणव राष्ट्रपति कौन करेंगे सी जो सुपारिश करने पूर्वर आगे आम राज्य को जनइबे आम राज्यर विधानसभा को जनइबे जे कि तुम राज्यर ना आम परिवर्तन करने को चाहूँ एवं एक निर्दिष्ट समय से स्थिरीकृत होती समय भितर आमको रिप्लाई दियो बोलिकी जदि एतिक समय भितर रिप्लाई देला ओडिशा सरकार जे कि हाँ आम तुम सपक्ष राजी अच्छू बा राजी ना तो राष्ट्रपति आम मतामत को अपेक्षा करती नहीं तो आम जहाँ मतामत दबा बा ओडिशा जहाँ मतामत दब राष्ट्रपति चाहिए ग्रहण करिपारंती चाहिए आग्राह्य करिपारंती ओके से राष्ट्रपति निर्भर करे से खाली फॉर्मालिटी दृष्टिकोण आम जो राज्यर परिवर्तन किसी हवाक थी से राज्य को सुपारिश पत्र पठे था तो सुपारिश पत्र आसू बा न आसू तापर संसद यदि चाहिए राष्ट्रपति सुपारिश क्रम संसद यदि चाहिए तो जमती कहले कौन राज्यर बाउंड्री को बढ़ेबा वा कमेबा कौन राज्य को राज्यर छोट छोट अंचल को लेकिन एक नूतन राज्य तैयारी करबा बा राज्यर नाम परिवर्तन करबा इत्यादि से करि परिबो ओके यही नियम प्रणयन करने पूर्व राष्ट्रपति अनुमति लोड़ा जाए आवश्यक विषय सूचित करी राष्ट्रपति प्राक सुपारिश मिलवा पर संसदर जेकोसी सदन में एक चिठा आईन आगत कर गोटे बिल आगत कर जेकोसी सदन में आमर दुईटी सदन अच्छी तुम जानी गोटे लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति प्राक सुपारिश आसला जेकोसी संसदर जेकोसी एक गृह ए बिलटी आगत हो पार राष्ट्रपति निजर सुपारिश देवा पूर्वर जो राज्य से नियमटा लागू होबार थिबो उक्त चिठा आईन को राज्य बा राज्य मानकर विधानमंडल को पठाई मतामत लोड़ी थांती एक निर्दिष्ट समय भितर से मतामतर उत्तर रखा पड़ता है किंतु राष्ट्रपति राज्यर मतामत मानिया को बाध्य नुहति तुम जब ठीक टाइम भी मतामत पठे राष्ट्रपति इच्छा ग्रहण करेंगे इच्छा ना ग्रहण करेंगे नहीं राज्य पुनर्गठन संपर्कित आईन प्रणयन करिवार क्षमता और आवश्यक संविधान संशोधन क्षमता संसद पाखर रही तो राज्य पाखरे यही क्षमता नहीं तो ये क्षमता क्या पाखर अच्छी ना भारतर संसद पाखरे सी चाहिए राज्य सहित किसी भी करिपारिबो राज्यर नाम सहित किसी भी करिपारिबो ओके सेथिपई कहुई आम यूनियन ऑफ स्टेट रे जितेबाला संघीय व्यवस्था भितर आम संघ टी पावरफुल एवं केंद्र सरकार बा आमर संसद चाहिए जे आम राज्य मध्य आम बाउंड्री को परिवर्तन करें दीटा राज्य को मिसई पारे गोटे राज्य को भांगी दीटा करें नाम परिवर्तन करें इत्यादि काम से करें किंतु सेथिपाई राष्ट्रपति प्राक सुपारिश नित्यांत आवश्यक। थैंक यू।